to all of you, dear students. As we discussed that the healthcare, okay, public healthcare and private healthcare, okay. तो private health sector में you will see that कि हाँ, in our country there are many private hospitals, okay, and there are many doctors and they are in a private clinic उनके पास हैं, ठीक है. And there is a wide range of private health facilities that exists in our country, and a large number of doctors run their own private clinics. And कि in your rural areas when you see there's a registered medical practitioners भी यहाँ पर हैं जिन्हें RMPs कहते हैं, okay. And urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. But it is the important thing that कि ये सारी चीज़ें तो हैं लाइक कि इफ़ यू सी द इन सिटीज़ एरिया देयर एज एक्सरे अल्ट्रासाउंड की क्या है वहाँ पर बहुत सारी देयर आर मैनी फैसिलिटीज़, ठीक है. बट यू विल सी that there are some drawbacks of these of things in our government, that government should not play a important role in a health sector because of कि if you see कि as name of suggests private health care facility are not owned or controlled by the government. So unlike the public health services in private facilities, patient have to pay a lot of money. So as you see कि private hospitals में क्या होता है कि they have to pay, उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ता है. इफ़ यू एज आई टोल्ड यू कि जैसे पब्लिक हेल्थ केयर में तो क्या होता है कि वहाँ पर 30 रुपीज़ की पर्ची या 50 रुपीज़ की पर्ची होती है, और अदर चार्जेस जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं, बहुत ही सिंपल चार्जेस हैं. बट इफ़ यू गो थ्रू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट क्लिनिक्स, सो यू विल सी कि आपको दिस इज़ नॉट फैसिलिटी एंड दे विल पे, you have to pay a lot of money and every service that they use. So today the presence of private facilities can be seen all around, or in fact now these are large companies that run hospitals, and some are engaged in manufacturing and selling medicines. So medical shops are found in every corner of the country, as you see in our district state hospital के आसपास भी there are many private मेडिकल शॉप्स हैं, ठीक है. तो ये देखो वहाँ पर इलाज तो होता है बट वहाँ पर पे भी ज़्यादा करना पड़ता है. सो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ केयर पे वो ज़्यादा ध्यान दे. एंड दिस इज़ लास्ट टॉपिक, सॉरी लास्ट टॉपिक तो नहीं है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी is adequate health care available to all, because of कि adequate health care, it is important thing to all citizen. And as I told you, it is the right of it is a fundamental right of every citizen to get a good facility of the public health care, ठीक है. In India, if you see, we face a situation where private services are increasing but public services are not. So what is the then possible available to people are mainly private services. So कि some private services encourage incorrect practices to earn more, because of कि जहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट सर्विसेज में प्राइवेट डॉक्टर्स और मे बी क्लिनिक्स ये भी करते हैं कि इफ़ कहीं पर अगर थोड़े से ही काम चल जाने वाला है, सो दे मे मोर इंजेक्शंस और मेडिसिन्स और साइलेंस एंड सिंपल मेडिसिन से जहाँ कम काम चल जाता है, सफिशिएंट हैं सिंपल मेडिसिन्स, बट वहाँ पर वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन देते हैं. सो बिकॉज इसमें भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज दे आर वो जब बिकम अ डॉक्टर, सो दे हैव टू पे मोर टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है. तो उनको खुद ही इतना पे करना पड़ा है डॉक्टर बनने के लिए. सो इट इज़ अ वेरी मतलब ये बहुत ही सिचुएशन, बहुत कंडीशन जो है इसकी बहुत डेंजर है. इट इज़ अ बैड कंडीशन इन आवर कंट्री हेल्थ के मामले में. ये बहुत इट इज़ ट्रू, ठीक है. और आपको पता ही है कि जो सत्य है वो हमेशा ख़राब ही होता है, ठीक है. सो कि इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एंड इफ़ दे आर इलनेस. सो कि 20% लोग ही क्या कर पाते हैं कि इलनेस में सिर्फ अपने उससे ही क्या है कि बीमारी के दौरान वो नेसेसरी मेडिसिन्स को
ख़रीदने में क्या हैं अवेलेबल हैं. And medical expenses cause hardship. It was reported in a study of 14% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury so have to borrow money or sell some of positions to pay for the expenses. So कि 40% लोग जो हैं अपनी ज़मीन अपने कुछ कीमती चीज़ों को बेच के क्या करते हैं कि अपना इलाज करवाते हैं. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ 1947 से अभी तक की जो हेल्थ की स्थिति है, इट इज़ अ वेरी बैड कंडीशन इन इंडिया. फॉर इफ़ यू आर सी द स्टेटिक्स पोर्सन, सो यू विल सी कि देखो, अगर हम देखें इम्पोर्टेंट फैक्ट को तो बहुत सारी कंडीशंस हैं. स्टैटिक्स पोर्शन अगर आप देखोगे तो इंडिया में छोटी छोटी बीमारियों से जो है लोग मर जाते हैं. सो इट इज़ वेरी सेमफुल थिंग. सो तभी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि देखो सही से पढ़ाई करो और कुछ चाहे कोई डॉक्टर बने, चाहे कोई इंजीनियर बने, चाहे कोई दूसरा वर्क करे, चाहे कोई ऑफिसर बने. सो कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं काम इंडिया के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए, ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हैं. So, for those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. What is worse is that this situation tends to happen again and again. So it is to be know that वो लोग sometimes उनके पास feed they have not a sufficient feed have कि उनके पास food नहीं है, drinking water सही नहीं है, adequate housing, cleaning surroundings they have not, and therefore are more likely to fall ill. तो देखो क्लीननेस नहीं है, वाटर ड्रिंकिंग वाटर साफ़ नहीं है उनके पास, ठीक है, पीने का पानी उनके पास साफ़ नहीं है, तो क्या है कि सिंपल सी बात है, बीमारियां होंगी, ठीक है. तो ये सारी गवर्नमेंट की क्या है, इट इज़ ये इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट को इसको सॉल्व करना चाहिए. एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. वुमेन फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेक अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर. सो महिलाएं जो हैं उनके पास कई बार उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है. एंड इट इज़ टू बी नोन दैट वुमेन हेल्थ कॉर्नर्स आर कंसिडर टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली. सो उनकी बीमारियों को कम देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज दे आर ऑल इक्वल. ओके, व्हाट कैन बी डन? So there is a little doubt that the health situation of most people in our country is not good. It is the responsibility of the government to provide equality healthcare services to all its citizens. As I told you कि गवर्नमेंट की क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे reach the facility to every citizen or every people in the country. And however health is and much dependent on basis amenities and social condition of the people. So as we know कई बार छोटे छोटे, हालांकि अब तो फिर भी ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं हमारे इंडिया के, फिर भी अभी जो हैं काफ़ी अच्छे हैं हेल्थ के मामले में, लेकिन इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ ये थोड़ा वर्ड्स होने से अच्छा थोड़े ठीक है, ठीक है, बहुत ख़राब होने से अच्छा थोड़े ठीक है. तो इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट्स 70 आफ्टर 70 years इंडिपेंडेंस वी आर नॉट गेटिंग अ good health, good education. So it is not good whichever the provided by the government. So hence it is important to work on both in order to improve the health situation to our people. So and this can be done. Look at the following example. If you see the some of the states, this is the case study of the Kerala experience. So if you see that 1996 में केरला गवर्नमेंट ने ये किया था कि उन्होंने some मेजर चेंजेस किए थे फॉर द स्टेट. 40% ऑफ एंटायर स्टेट बजट उन्होंने क्या किया था कि वो पंचायत पे लगाया था, और दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड देयर रिक्वायरमेंट्स एंड दिस मेड बी पॉसिबल अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग was for done water, food, women डेवलपमेंट, एजुकेशन. तो 40% उन्होंने बजट जो है वो पंचायत स्तर पे दे दिया, पंचायत लेवल पे. इट मीन्स जो लोकल जो हमारी गवर्नमेंट है, लाइक जो हमने ग्राम सेवक है, टोलू ग्राम सेवक, बीडीसी मेंबर एंड जिला पंचायत, तो वो 40% जो है बजट दे दिया. तो देखो बजट है तो काम भी होगा, ठीक है, काम होगा तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इट इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग ना कि बजट का इशू हमेशा रहता है. और वी आर मतलब हमें हमेशा वी आर नॉट कैच टू द बजट, ठीक है, तो हम उनको पकड़ ही नहीं पाते हैं.
And this meant that water supply schemes were checked, the working of school and anganwadis was ensured, and specific problems village were taken up. If you see, if your villages that यहाँ पर कितने आंगनबाड़ी स्कूल में क्या किस तरीके से वर्क होता है, ठीक है. बट इफ़ यू सी द एक्सपेंस ऑफ केरल, दैट देयर इज़ 40% ऑफ द बजट ऑफ द इंटायर बजट ऑफ द केरल स्टेट, said they give the 40% budget of to the only panchayat level. So all of these help to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems, as you see that such of shortage of medicines, insufficient hospital beds, तो ये सारी चीज़ें कि उस बजट के अकॉर्डिंग क्या है वो सब क्लियर हो गई हैं. और एज यू नो कि केरला जो है वो हेल्थ के मामले में अभी अच्छा है, ठीक है. इट इज़ बहुत ही सही माना जाता है हेल्थ के मामले में. इफ़ यू सी, अगर यूट्यूब में देख लो, आप सर्च मार लो हेल्थ की स्थिति क्या है केरला की, तो यू विल सी कि केरला का देखो लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वहाँ अच्छा है, एजुकेशन का रेट अच्छा है. बिकॉज ऑफ लिटरेसी अच्छी है तो एजुकेशन होगी वहाँ. तो ये हमें केरल से सीखना चाहिए, ठीक है. अगर अदर स्टेट्स ने भी इस केरल से विल experience from the Kerala. And the second, the Costa Rica approach. It is the small country of Central America की एक small country है. So the main reason for this can be found in Costa Rica constitution several years ago. So Costa Rica ने क्या एक several years ago पहले क्या किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, देयर इज लिटिल बिट चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर लिटिल बिट नहीं कह सकते हैं, वी विल से दैट अ बिग चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट दे आर गिव अ एंटायर बजट ऑफ टू द हेल्थ एजुकेशन पे उन्होंने, और छोटी छोटी समस्याओं को के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने क्या किया, इन अपने हेल्थ को दे दिया. ऑन दे would not be a keep their army, they have in their army. And the Costa Rica government provide basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, housing, health, education is also considered very important, and knowledge about health. अब उन्होंने आर्मी नहीं रखी, इसका मतलब ये नहीं कि भारत भी ऐसा कर सकता है, बट देखो क्योंकि इम्पोर्टेंट हमारे लिए आर्मी भी है, ठीक है. सभी की इम्पोर्टेंस है, बट यू नो कि हेल्थ और एजुकेशन, दोज टू थिंग्स आप भी सोचना. इफ़ यू आर गेटिंग व्हेन यू आर, आप बड़े हो जाओगे और कुछ आप कोई अच्छे करियर में होगा, ठीक है. मान लो पलक एक अच्छी डॉक्टर बन गई, मनन एक अच्छा ऑफिसर बन गया, और क्या कहते हैं कि नितेश एक अच्छा इंजीनियर है, ठीक है. और अदर जितने हमारे साक्षी हैं, हमारा यश है, ठीक है, ये सभी जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि यू विल बी एन लाइक एन ऑफिसर, और लाइक एन डॉक्टर, लाइक एन इंजीनियर, लाइक एन सोशल वर्कर, जो भी आपके टीचर, ठीक है, एजुकेटर. सो जितने भी आप जो भी हैं, जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, 37, अमृता एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती है. तो सभी इट मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स से ये कह रहा हूँ कि देखो आप कभी भी कुछ भी करो, ठीक है. सो बिकॉज वी हैव इन आवर ओन माइंड कि हमें सोशल वर्क, इट मीन्स हमने सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो वी आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और अपने एम जो है उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट थिंग ऑफ द चैप्टर. सो मैं इसलिए अभी इसमें कुछ बहुत चीज़ें आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज़ माई, मेरे को अभी अंदर से भी फीलिंग आ रहा है कई बार बोलने का कि हाँ इट इज़ टू बी. कई बार मैं भी ये पढ़ के बहुत अजीब टाइप का लगता है, बिकॉज जब हमारे पास हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड जो सिस्टम है वो ख़राब होता है, तो इट इज़ टू बी अ वेरी सेम फीलिंग है फ्रॉम माई सेल्फ, यू नो कि एंड आई ऑल्सो कि मुझे भी इसमें वर्क करना चाहिए कभी ना कभी, ठीक है. तो कि बस दैट्स इट. सो ये हैव अ नाइस डे. ये लास्ट चैप्टर था. अच्छा, जो 8 तारीख को हम लोग इसका मैं लूँगा इसका टेस्ट. सो यू हैव टू रीड द चैप्टर इन बिटवीन लाइन, ओके. एंड कुछ भी आ सकता है, इसको पढ़ लेना सही तरीके से. कुछ चीज़ें मैं आपको सेंड कर दूँगा इन अ गूगल क्लासरूम, ओके. सो गुड बाय, हैव अ गुड डे.